Good morning, everyone. In the last class, we did, in the previous classes, we just did three types of pairs of angles. Okay. Then, first was adjacent angle, second was complementary, and third was supplementary angle. Adjacent angles, I told you, in which a common vertex and a common arm is there, and non-common arms lie on the opposite sides of the common arm. Okay. Second was complementary, whose two angles sum is 90 degree, then they are complementary, and if sum of two angles is 180 degree, then they are supplementary. We did question number 3, 4, 5 also of exercise 8.1 based on complementary and supplementary angles. Today we will do question number 6 of exercise 8.1. So what is that? The question is, if the magnitude of an angle is same as its supplement. The word supplement comes here means it is talking about supplementary angles. I also told you in the last class. Find the angle. Okay, so what you have to do? In the question it is given, yes, the sum of supplementary angles is 180 degree. Beta question number 1 and 2 we will do when we will study linear pair of angles and other angles. Okay, अभी हमने वो नहीं पढ़े हैं ना, अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स ज्यादा अच्छे से पढ़े हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ क्योंकि अभी वो आपके माइंड में है अच्छे से, आप अच्छे से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन समझ सकते हैं इस टाइम। ठीक है, बीच में दूसरे एंगल्स आ जाएंगे तो आप कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री भूल जाएंगे और फिर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी आपको। तो वी विल टेक टॉपिक विद देयर क्वेश्चंस। ओके, so if the magnitude of an angle is same as its supplement, find the angle. What is it saying? The magnitude of an angle, magnitude means मैंने जो आपको बताया था measurement, which we measure in degree, so that will be the magnitude. Okay, तो if the magnitude of an angle, कोई एंगल आपको गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी जो भी मेजरमेंट जो वैल्यू आपको दी हुई है वो वैल्यू जो है इज सेम एज इट्स सप्लीमेंट, उसके जो सप्लीमेंट एंगल है उसके इक्वल है, यानी कि वो एंगल और उसका सप्लीमेंट दोनों इक्वल है। ओके, सप्लीमेंट क्या होता है? व्हाट इज सप्लीमेंट? If two angles are supplementary angles, then both are supplement of each other. Means if one angle is supplement of the other, their sum will be 180 degree. Okay. So what is, let the supplement of x degree be y degree. What have I assumed? Let the supplement of x degree be y degree. क्योंकि आपको कोई भी एंगल की वैल्यू नहीं दी हुई है, so I have assumed both the angles. Okay. What is it saying? If the magnitude of an angle, x डिग्री वो एंगल मैंने मान लिया जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, इज सेम एज इट सप्लीमेंट, उसके सप्लीमेंट के, x डिग्री जो एंगल है उसका सप्लीमेंट है y डिग्री। सो व्हाट इज गिवन? जो x डिग्री एंगल है वो उसके सप्लीमेंट यानी y डिग्री के इक्वल है। क्या गिवन है आपको? दोनों की वैल्यूज इक्वल है, x डिग्री इज इक्वल्स टू y डिग्री। ओके, सो if they are supplement of each other, their sum will be 180 degree because they are supplementary angles. Okay, ब्रैकेट में हमें रीजन लिखना है क्या? they are supplementary angles and sum of supplementary angles will be 180 degree. Okay, so now I am putting the value of y degree, that is x degree. y degree जो है वो x degree के इक्वल है ना, x डिग्री आई एम राइटिंग एज इट इज प्लस इस y डिग्री के प्लेस पे मैं x डिग्री भी लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों की ही वैल्यूज इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो इट विल बी x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फाइन बेटा, समझ में देखिए, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल इज सेम एज इट्स सप्लीमेंट, टू एंगल्स हैं आपके पास, एक तो कोई एंगल गिवन है और दूसरा है उसका सप्लीमेंट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर किन्हीं एंगल का सम 180 डिग्री होता है दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स,
एंड बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो ये वर्ड ये है सप्लीमेंट, ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक एंगल तो आपको गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड दूसरे एंगल के अपने एंगल के सप्लीमेंट के इक्वल है। तो मैंने एक एंगल मान लिया x डिग्री और उसका सप्लीमेंट मान लिया y डिग्री। मैग्नीट्यूड मीन्स मेजरमेंट जो डिग्री में होता है, ठीक है, वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। फाइन। मैंने आपको बताया ना अभी स्टार्टिंग में, मैंने बताया था मेजरमेंट जो मैं पिछली बार बोल रही थी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीट्यूड। फाइन। सो लेट द सप्लीमेंट ऑफ x डिग्री बी y डिग्री। x डिग्री कोई एंगल है, उसका सप्लीमेंट मैंने मान लिया y डिग्री, यानी कि x डिग्री और y डिग्री का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, बिकॉज y डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ x डिग्री, सो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। x डिग्री एंड y डिग्री दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, तो उन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब ये कहाँ से आया, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है कि कोई एंगल जो है, जो मैंने x डिग्री माना है, वो एंगल मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल वो मैंने x डिग्री माना है, आई हैव एज्यूम्ड इट एज x डिग्री, इज सेम एज का मतलब इक्वल है, किसके इक्वल है, इट्स सप्लीमेंट, उसका जो सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट मैंने क्या माना है, y डिग्री, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल इज इक्वल्स टू इट्स सप्लीमेंट, मींस x डिग्री इज इक्वल्स टू y डिग्री। अब x डिग्री प्लस y डिग्री की वैल्यू हो गई 180 डिग्री। ये जो y डिग्री आपको गिवन है, इसके इस प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, x डिग्री। फाइन, आई कैन राइट दिस एट द प्लेस ऑफ y डिग्री बिकॉज दे बोथ आर इक्वल। ठीक है, सो y डिग्री के प्लेस पे मैंने लिख दिया x डिग्री। x डिग्री और x डिग्री 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स x डिग्री, 1 टाइम एंड 1 टाइम, टोटल कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया ना x डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, ऑन द अदर साइड इट विल बी इन द डिवीजन। फाइन, सो x डिग्री विल बी 90 डिग्री, मीन्स जो एंगल हमसे पूछा गया था, द एंगल विच वॉज आस्क्ड टू अस, फाइंड द एंगल, सो दैट विल बी 90 डिग्री। जिस एंगल का मैग्नीट्यूड उसके सप्लीमेंट के इक्वल है, वो एंगल है 90 डिग्री। अब आप देखिए, इसका सप्लीमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, यानी सप्लीमेंट भी 90 डिग्री ही होना चाहिए। x की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट जो होगा उसकी वैल्यू भी 90 डिग्री होनी चाहिए, यानी 90 प्लस 90 180 हो गया। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7, sorry, question number 6. Question number 7 you have to do in the homework. Now next is question number 8. An angle is 2 upon 3 of its complement. Okay, find its magnitude. So an angle is 2 upon 3 of its complement, find its magnitude. The same as the previous question, बस यहाँ पे रिलेशन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है आपको। ठीक है, देखिए